ایک بادشاہ جس نے خود کو خدا کہا۔ ایک ایسی طاقت جس کے سامنے سب جھکتے تھے، اور ایک قوم جو ظلم کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ ہزاروں سال پہلے مصر کی سرزمین پر ایک ایسی سلطنت قائم تھی فرعون، جس کے ایک اشارے پر زندگیاں بدل جاتی تھیں۔ مگر تاریخ گواہ ہے، جب طاقت حد سے بڑھ جائے تو اس کا زوال بھی یقینی ہو جاتا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض اور اس نے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا اور بتائے گا سچ کو، ان لوگوں تو جو ایمان لائے۔ ظلم کا، غرور کا اور ناانصافی کا۔ نیل کی ندی کے کنارے ایک ایسی تہذیب نے جنم لیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ مصر، ایک ایسی سرزمین جہاں علم، فنون اور طاقت اپنے عروج پر تھے۔ یہاں کے لوگ نہ صرف زمین کی زرخیزی سے فائدہ اٹھاتے تھے بلکہ ایک منظم اور مضبوط معاشرہ قائم کر چکے تھے۔ عظیم اہرام، شاندار مندر اور بلند و بالا عمارتیں اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ مصر اپنی طاقت کے عروج پر تھا۔ یہ اہرام صرف قبریں نہیں تھے بلکہ ایک ایسی سوچ کا اظہار تھے جس میں انسان اپنی طاقت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا چاہتا تھا۔ ہر پتھر، ہر دیوار، ہر نقش اس بات کی علامت تھا کہ یہاں ایک ایسی سلطنت قائم ہے جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی ہے۔ مگر اس عظمت کے پیچھے ایک ایسا نظام بھی موجود تھا جو ایک شخص کے گرد گھومتا تھا، فرعون۔ وہ صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اس کا حکم ہی قانون تھا اور اس کی مرضی ہی سب کچھ تھی۔ لوگ اس کے سامنے جھکتے، اس کی عبادت کرتے اور اس کے خوف میں زندگی گزارتے تھے۔ مصر کی زمین زرخیز تھی، نیل کا پانی زندگی دیتا تھا اور ہر طرف خوشحالی کے آثار نظر آتے تھے۔ مگر یہ خوشحالی سب کے لیے یکساں نہیں تھی۔ ایک طرف شاہی محل میں عیش و عشرت تھی تو دوسری طرف عوام اپنی محنت اور مشقت کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ یہی وہ تضاد تھا جو اس عظیم سلطنت کے اندر چھپا ہوا تھا، ایک ایسی خاموش کمزوری جو وقت آنے پر سب کچھ بدل دینے والی تھی۔ مصر کی اس عظمت کے پیچھے ایک تاریک حقیقت بھی موجود تھی۔ عوام، جو اس سلطنت کی بنیاد تھے، خود سب سے زیادہ مظلوم تھے۔ مزدور دن رات کام کرتے، بھاری پتھر اٹھاتے اور فرعون کے خوابوں کو حقیقت میں بدلتے، مگر ان کی اپنی زندگی میں کوئی سکون نہیں تھا۔ ان پر سخت قوانین نافذ تھے، ذرا سی غلطی پر سخت سزا دی جاتی۔ سپاہیوں کا خوف ہر وقت ان کے سروں پر منڈلاتا رہتا تھا۔ نہ وہ اپنی مرضی سے جی سکتے تھے، نہ ہی اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے تھے۔ کسان اپنی زمینوں پر محنت کرتے، فصلیں اگاتے، مگر ان کی کمائی کا بڑا حصہ فرعون کے خزانے میں چلا جاتا۔ ان کے اپنے گھروں میں بھوک تھی، مگر شاہی محل میں ہر چیز کی فراوانی تھی۔ یہ صرف جسمانی ظلم نہیں تھا بلکہ ذہنی غلامی بھی تھی۔ لوگوں کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ فرعون ہی ان کا رب ہے اور اس کی اطاعت ہی ان کی نجات ہے۔ یہی سوچ انہیں کمزور بناتی جا رہی تھی۔ ہر گھر میں خوف تھا، ہر دل میں بے بسی تھی اور ہر آنکھ میں ایک خاموش سوال: کیا یہ ظلم کبھی ختم ہوگا؟ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو قدرت اپنا نظام حرکت میں لاتی ہے۔ اسی مصر میں جہاں فرعون خود کو خدا سمجھتا تھا، ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو اس کے غرور کو توڑنے والا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کو خبر ملی کہ ایک بچہ اس کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، تو اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ خوف اور دہشت ہر طرف پھیل گئی۔ اسی وقت ایک ماں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اسے نیل کے حوالے کر دیا، اور حیرت انگیز طور پر وہی بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا
जहां इसे शाही माहौल में परवरिश मिली। वक्त गुजरा और मूसा जवान हुए। उन्होंने जुल्म को अपनी आंखों से देखा और उनके दिल में इंसाफ की आग भड़क उठी। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता की और हुक्म दिया कि वो फ़िरौन के सामने जाकर सच्चाई का पैगाम दे। ये एक गैर मामूली चैलेंज था। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह और दूसरी तरफ एक नबी जो सिर्फ हक की बात कर रहा था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में खड़े होकर हक की बात की तो ये सिर्फ एक पैगाम नहीं था, बल्कि एक चैलेंज था उस गुरूर के खिलाफ जो खुद को खुदा समझने लगा था। फ़िरौन ने उस पैगाम को सुनने के बजाय उसे अपनी ताकत के लिए खतरा समझा। उसने फौरन अपने दरबार के बेहतरीन जादूगरों को बुलाया। उसका ख्याल था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को जादू साबित कर देंगे और लोगों के दिलों में शक पैदा कर देंगे। एक बड़ा मुकाबला मुनाकिद किया गया जहां पूरे मिस्र से लोग जमा हुए। जादूगरों ने अपने फन का मुजाहिरा किया, रस्सियां और लाठियां फेंकी जो लोगों को सांपों की तरह नजर आने लगीं। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला तो वो एक हकीकी सांप बन गया। ऐसा सांप जिसने जादूगरों के तमाम फरेब को निगल लिया। ये कोई जादू नहीं था, ये एक वाज़ेह मोजज़ा था। जादूगर जो सच्चाई को पहचानने की सलाहियत रखते थे फौरन सजदे में गिर गए और ऐलान किया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए हैं। ये मंजर फ़िरौन के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। उसका गुरूर जख्मी हुआ, उसकी ताकत को चैलेंज किया गया और उसके अपने दरबार के लोग उसके खिलाफ सच्चाई के साथ खड़े हो गए। मगर उसके बावजूद उसने अपनी हठ धर्मी नहीं छोड़ी। उसने जादूगरों को सख्त सजा देने का हुक्म दिया ताकि दूसरों के लिए इबरत बने। यहां से अजाब का एक सिलसिला शुरू हुआ, एक ऐसा सिलसिला जो सिर्फ सजा नहीं था बल्कि बार बार तंबीह भी था। सबसे पहले नील का पानी खून में बदल गया। वही पानी जो जिंदगी का जरिया था अचानक नाकाबिल इस्तेमाल हो गया। लोग प्यास से तड़पने लगे मगर हर जगह पानी सुर्ख हो चुका था। फिर जमीन पर मेंढकों की भरमार हो गई। वो घरों में दाखिल हो गए, खाने में, बिस्तरों में, हर जगह। लोगों के लिए सुकून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। उसके बाद कीड़े मकोड़े और जुएं फैल गईं जिन्होंने इंसानों और जानवरों को अजियत में मुब्तला कर दिया। फिर टिड्डी दिल ने हमला किया। फसलें जो किसानों की मेहनत का नतीजा थीं पल भर में तबाह हो गईं। खेत खाली हो गए, दरख्तों के पत्ते तक न बचे। मईशत तबाह होने लगी और लोगों की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। उसके बाद एक बीमारी फैली जिसने मवेशियों को हलाक कर दिया। जो जानवर लोगों की जिंदगी का सहारा थे वो खत्म होने लगे। फिर जिस्मों पर फोड़े और जख्म निकल आए जो शदीद तकलीफ का बाइस बने। हर अजाब के बाद लोग फ़िरौन के पास जाते, उससे कहते कि मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाए ताकि ये मुसीबत खत्म हो। फ़िरौन वक्ती तौर पर मान जाता और वादा करता कि वो बनी इसराइल को आज़ाद कर देगा। मगर जैसे ही अजाब खत्म होता वो अपने वादे से मकर जाता। ये एक मुसलसल चक्कर बन गया था, अजाब, वादा और फिर इनकार। उसका दिल सख्त हो चुका था। वो निशानियां देख रहा था मगर मानने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार एक शदीद तारीकी ने मिस्र को अपनी लपेट में ले लिया। दिन में भी अंधेरा छा गया। लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। यह सिर्फ रोशनी का खत्म होना नहीं था बल्कि एक अलामत थी कि फ़िरौन की सल्तनत का नूर खत्म हो रहा है। मगर उस सब के बावजूद फ़िरौन ने सच को कबूल नहीं किया। उसका गुरूर, उसकी ताकत और उसका झूठा यकीन उसे हकीकत से दूर रखता रहा और यही जिद उसे एक ऐसे अंजाम की तरफ ले जा रही थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। सीन 5, हिजरत और मोजज़ा। जब अजाब मुसलसल आते रहे और फ़िरौन ने हर बार अपने वादे तोड़ दिए तो आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाए। फ़िरौन का अंजाम। जब बनी इसराइल इस मोजज़ाती रास्ते से गुजर रहे थे तो उनके दिलों में शुक्र और हैरत दोनों थे। वो एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहे थे, गुलामी से आजादी की तरफ। दूसरी तरफ फ़िरौन अपनी फौज के साथ इस मंजर को देख रहा था। उसने भी देखा कि समंदर का पानी अलग हो चुका है, मगर उसने इस मोजज़े को भी अपनी ताकत का मौका समझा। उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो इसी रास्ते पर चलें और बनी इसराइल का पीछा जारी रखें। इसका गुरूर अब भी जिंदा था। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये अल्लाह की कुदरत है।
फौज समंदर में दाखिल हो गई। रथ, घोड़े, सिपाही सब इस खुश्क रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। जब वो समंदर के दरमियान पहुंचे तो अचानक कुदरत ने अपना फैसला सुना दिया। पानी, जो अब तक दीवारों की तरह खड़ा था, वापस अपनी जगह आना शुरू हो गया। लहरें तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी। सिपाहियों में खौफ फैल गया। वो भागने लगे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। फिरौन, जो खुद को खुदा कहता था, अब बेबस खड़ा था। पानी उसे अपने अंदर ले रहा था और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसी लम्हे उसने सच को मान लिया। उसने कहा कि वो ईमान ले आया है, मगर ये ईमान उस वक्त आया जब सब कुछ खत्म हो चुका था। पानी ने उसे और उसकी फौज को मुकम्मल तौर पर डुबो दिया। एक अजीम सल्तनत, एक ताकतवर बादशाह और उसका गुरूर, सब एक लम्हे में खत्म हो गया। समंदर दोबारा पुरसुकून हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर तारीख बदल चुकी थी। ये अंजाम सिर्फ फिरौन का नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक सबक था जो ताकत के नशे में सच को भूल जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही होता है और सच्चाई, चाहे कितनी ही कमजोर क्यों ना लगे, आखिरकार जीत जाती है।